Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Okay, now in Sir. the last lecture, today is a normal lecture, regular lecture for magnetism. Okay, so in the last lecture, we were solving the numerical based on the chapter that was magnetism, correct? Right, right, right. Yes. Which was the last numerical which we have solved? Can anyone tell? सर वो टेक्स्ट बुक वाला टेक्स्ट बुक वाला कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर बताओ. सर वो टू स्मॉल एंड सिमिलर बार मैग्नेट्स Okay, fine. Chalo. We have solved a question that was textbook page number 228. Again, all of you are going to open your textbook page number 228. Come to page number 228. 228. Okay. On page number 228, we have not solved question number 4th का first. Correct? Question number 4th का first हमने solve नहीं किया है. So first we are going to start with that question only. So let us begin. Question है, a magnetic pole of bar magnet with pole strength of 100 ampere meter. सब लोग आए ना टेक्स्ट बुक पे? हाँ कि नहीं? करेक्ट मिला. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, पेज नंबर 228. जल्दी ओपन योर टेक्स्ट बुक. A magnetic pole of bar magnet with pole strength 100 ampere meter is 20 centimeter away from the center of a bar magnet. Bar magnet has pole strength of 200 ampere meter and has a length 5 centimeter. If the magnetic pole is on the axis of the bar magnet, find the force on the magnetic pole. Okay, fine. So this is our question. We have to find the force on the magnetic pole. Now, how we are going to solve this question? Let us see. This question looks a bit complicated, but we are going to resolve this. A magnetic pole of a bar magnet with pole strength 100 ampere meter. There is a magnetic pole. Now, it is not specified whether it is a north pole or it is a south pole. Okay, so we can consider any pole. Let me say it is north pole. Okay, if you want, you can also consider it as south pole. It doesn't make any difference because they have not specified in the question. A magnetic pole of a bar magnet with pole strength 100 ampere meter. So this pole is actually having a pole strength that is 100 ampere meter, is 20 centimeter away from the center of a bar magnet. Okay, यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, इसके सेंटर से this pole is at a distance of 20 centimeter. Okay. Now, अभी मैं मैग्नेट भी कैसा लूं, साउथ लूं, नॉर्थ लूं, से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं साउथ लूंगा तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, नॉर्थ लूंगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, लेकिन दोनों फोर्स सेम ही रहेगा, वेदर इट इज अट्रैक्शन और रिपल्शन. सो इट डजंट मैटर वेदर आई टेक नॉर्थ पोल और साउथ पोल. Okay, so I should basically satisfy the condition which is given in the question. So it is said that bar magnet has a pole strength of 200 ampere meter. This bar magnet is having a pole strength Qm, which is given as 200 ampere meter. Now we have two pole strength, one of the north pole of the magnet and other of the entire magnet. So let me name it as Qm1 and let me name it as Qm2. Okay. Now, if you want, you can also name this as one, name that as two. It is your choice. And has a length of 5 centimeter. This magnet is having a length of 5 centimeter, means the length of the magnet is always the magnetic length of the magnet. Remember this thing. Fine. Now, magnetic length of the magnet is given as 5 centimeter, means this is 2.5 centimeter. And again, this is 2.5 centimeter. आगे बोला है, if the magnetic pole is on the axis of a bar magnet, वही हम लोग ने किया है condition. This pole is on the axis of the bar magnet, so we have taken the condition of axis only. Find the force on the magnetic pole. तो ये magnetic pole के ऊपर कितना force लगेगा वो हम लोग को find करना है. If it is south and north, then there will be a force of attraction. If you would have taken this as south, then it would have been force of repulsion.
हम लोग का मेन टास्क क्या है, हम लोग को फोर्स F का वैल्यू फाइंड करना है, whether it is attraction or repulsion, it depends upon you because it is not specified in the question. क्वेश्चन समझा सबको? यस एवरीवन? हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, जल्दी समझा क्वेश्चन? Yes. ओके, अभी ध्यान दो. दिस इज लाइक अ कंडीशन ऑफ अ पॉइंट केप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट, है ना? अभी मैंने तो इस तरफ बना दिया, आपको चाहिए आप उस तरफ भी बना सकते हो. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द मिरर इमेज, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. तो ये हम लोग का एक्सिस वाला चीज हो गया. मुझे इसके ऊपर फोर्स निकालना है. इसके ऊपर जब फोर्स निकालना है, टॉर्क के फॉर्मूला में अगर आप लोग को याद होगा, हम लोग ने टॉर्क का जो डेरिवेशन किया था उसमें फोर्स का हम लोग ने फॉर्मूला निकाला था, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू द पोल स्ट्रेंथ. देखो जाके डेरिवेशन जल्दी से. हम लोग ने ऐसा टॉर्क का डेरिवेशन किया था, ऊपर नॉर्थ पोल था तो इसमें फोर्स बोला था प्लस ऑफ क्यू एम इंटू बी, और पीछे यहां पे ऐसा फोर्स था, इसको बोला था माइनस ऑफ क्यू एम इंटू बी. देखो डायग्राम रेफर करो, मिला टॉर्क का डायग्राम? यस एवरीवन? Yes. ऐसा हम लोग ने बोला था प्लस क्यू एम इंटू बी, इसको बोला था माइनस क्यू एम इंटू बी. फोर्स का वैल्यू हमने बोला था इन द डेरिवेशन ऑफ टॉर्क. रेफर द डायग्राम. मिला 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 सबको? यस? चलो, तो इससे मेरे को पता चल गया कि हम लोग का फोर्स का वैल्यू है दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू पोल स्ट्रेंथ. फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? ये पोल के ऊपर लग रहा है, तो इस पोल का पोल स्ट्रेंथ लेंगे दैट इज QM2. और मैग्नेटिक इंडक्शन कहां पे है? ड्यू टू दी एक्सिस, तो हम लोग बी एक्सिस का वैल्यू लेंगे. तो सबसे पहले मेरे को बी एक्सिस का वैल्यू निकालना पड़ेगा. बी एक्सिस का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? आई एम गोइंग टू से बी एक्सिस का फॉर्मूला मुझे पता है. बी एक्सिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब. ये हम लोग का बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है? दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब. इफ इट इज 2m अपॉन आर क्यूब, ये क्या है? This is m, that is magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment is not given to us, but we know the formula, that is qm into 2l. ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का. बट वी आर सॉल्विंग फॉर मैग्नेट, तो यहाँ पे जो पोल स्ट्रेंथ लेंगे वो मैग्नेट का लेंगे, दैट इज QM1 अपॉन r का क्यूब. In the question, it is already given that the length of the magnet is 5 centimeter. मतलब in short, the magnetic length of the magnet is 5 centimeter. We are not going to solve our question in centimeter. We are going to solve it in meter. So 5 into 10 to the power minus 2 meter. And this R will be equal to, R is equals to 20 into 10 to the power minus 2 meter. मैंने सारे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया. अभी मैं सॉल्व कैसे करूंगा इसको? I'm going to say b axis is mu naught upon 4 pi का वैल्यू क्या है? Mu naught upon 4 pi we know it is a constant value 10 to the power minus 7. हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं? Yes, 10 to the power minus 7 into 2 into QM1 का वैल्यू है that is 200 into 2L का वैल्यू है that is 5 into 10 to the power minus 2 upon R का क्यूब लेना है, मतलब 20 into 10 to the power minus 2 का क्यूब लेना है. तो 20 into 10 to the power minus 2 का क्यूब. अब इसका क्यूब मैं सॉल्व करूंगा, समझो इधर. यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, यहाँ पे लाइन बना देता हूँ. तो मुझे मिलेगा, क्यूब बोला मतलब मैं उसको 3 बार लिखूंगा क्योंकि मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं करता. -2 +2 कैंसिल. ये समझा क्या किया मैंने? 2 0 और 10 टू द पावर -2 कैंसिल. उसके बाद एक और चीज मुझे मालूम है, 5 2 भी 10 होता है ना? 5 2 10. So 10 into 10 to the power -7 will become 10 to the power -6. Yes or no? हाँ कि नहीं? Everyone, correct? So it will be 2 into 10 to the power -6 अपॉन ये 20 into 10 to the power -2 का क्यूब है. मतलब मैं इसको 3 बार लिख देता हूं, 20 into 20 into 20 into पावर मल्टीप्लाई होता है, 3 2 6, 10 to the power -6. समझा ये सबको? हाँ, 10 to the power -6, 10 to the power -6 हो गया कैंसिल, करेक्ट? मेरे पास बचा 2 1 2, 2 10 20. So I'm left with that is b axis is equals to 1 upon 20 into 20 into 10. हाँ कि नहीं? है ना? 20 into 20 into 20 into 10. करेक्ट? यस एवरीवन, करेक्ट ना? तो अभी यहाँ पे क्या होगा? ये 3 है, मतलब मैं इसको लिखूंगा 1 upon 2 2 4 into 10 to the power 3.
10 टू द पावर 3 को मैं ऊपर लेके जाता हूं तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। मेरे पास बचेगा 1/4 इंटू 10 टू द पावर -3। 1/4 का तो वैल्यू सबको मालूम है, 1/4 मतलब 0.25, 1/4 हुआ ना 0.25, है ना। तो 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला, ये मुझे बी एक्सिस का वैल्यू मिल गया। अभी ये बी एक्सिस का वैल्यू मैं इधर सब्सटीट्यूट करूंगा, मुझे मिलेगा F इज इक्वल्स टू, अभी मुझे करना क्या है, मुझे ये सॉल्व करना है। अभी सॉल्व करना है इसका मतलब क्या, मैं थोड़ी ना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज में जाऊंगा, मैं फ्रैक्शन में डाल देता हूँ ना इसका वैल्यू, ताकि मेरे को कट करने में बहुत आसानी हो। अभी मैं इसको डेसिमल में डालूं फिर वापस रिजॉल्व करूं तो क्या मतलब है, तो फ्रैक्शन में डाल दो। QM2 का वैल्यू है दैट इज 100, ठीक है। तो 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर +2 will be equal to 10 to the power -1, करेक्ट है ना, 10 टू द पावर -1। और वही 1/4 मतलब 0.25 इंटू 10 टू द पावर -1। फोर्स है तो न्यूटन में आएगा, लेकिन ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं है। इवन इफ यू लीव योर आंसर हियर तो चलेगा, बट कितना गंदा दिखता है वो, उसको हम लोग हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाते हैं, मतलब 0.5 और 5 के रेंज में लेके आते हैं। सो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2। समझा इधर क्या किया मैंने, इधर एक डेसिमल शिफ्ट कर दिया और उधर एक बढ़ा दिया मैंने पावर। सो ये सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया, मतलब 0.5 और 5 के रेंज में आ गया। सो माय फाइनल आंसर ऑफ फोर्स इज 2.5 into 10 to the power -2 Newton. It doesn't matter whether it is a force of attraction or whether it is a force of repulsion. If it would have been specified in the question, then we would have taken it as attraction or repulsion. ठीक है, लेकिन कुछ दिया नहीं है तो हम लोग अपने हिसाब से इमेजिन करते हैं। समझा इतना? यस एवरीवन, हाँ कि नहीं? यस, चलो गुड। कॉपी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। क्या वापस से बोलो। क्या क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, करेक्ट। ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे।
सर बोलो सर वो एक डाउट था सर, तो पूछना था ना। से सर इन टेक्स्ट बुक फॉर बी इक्वेटर द इक्वेशन इज गिवन माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब। वेयर टू पेज नंबर 223। हाँ बी इक्वेटर फॉर बी इक्वेटर राइट या यस सर। हाँ सो दैट इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ना देखो हमने भी वेक्टर में वैसे ही रिप्रेजेंट किया है माइनस साइन डाला है बट व्हेन वी सॉल्व क्वेश्चन वी टेक ओनली द मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन देखो हम लोग का नोट्स रेफर करो हमने भी वेक्टर में उसको माइनस डाला है हाँ कि नहीं यस सर। डन ये हो गया सबका सर इसमें यस कौन यस सा यस QM1 और कौन सा QM2 है? क्या बोल रहे हो आप वो मैग्नेट और आपने पोल लिए, सर कौन सा QM1 और कौन सा QM2 है? दिस इज QM1 दिस इज QM2 ओके ओके आगे जाए 2 मिनट। अच्छा करो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं उसी के नीचे वाला एक क्वेश्चन लेते हैं उसके नीचे वाला क्वेश्चन देखो सेम पेज पेज नंबर 228 A magnet makes an angle of 45 degree मिला सब लोग को करेक्ट A magnet makes an angle of 45 degree with the horizontal in a plane making an angle of 30 degree with the magnetic meridian find the true value of dip angle at that place ओके मेरे को डिप किसका डिप एंगल का ट्रू वैल्यू फाइंड करना है मतलब एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना है नाउ पे अटेंशन अ मैग्नेट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इन अ प्लेन एक ऐसे प्लेन में एंगल बनाता है जो क्या कर रहा है 30 डिग्री एंगल बना रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ मतलब ये क्वेश्चन समझ के लो हम लोग का अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है ठीक है इफ यू रिमेंबर हम लोग ने बोला था पीछे है जोग्राफिकल मेरिडियन आगे है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन तो बोला है अ मैग्नेट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इन विद द हॉरिजॉन्टल ठीक है हॉरिजॉन्टल के साथ ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है मतलब एंगल ऑफ डिप दिया है दैट इज फाइव है ना इसको हम लोग एंगल ऑफ डिप बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में सो फाइव का वैल्यू दिया है दैट इज 45 डिग्री इतना दिमाग में बैठा फाइन आगे हम लोग को बोला है इन अ प्लेन कौन से इस प्लेन में बना रहा है विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरिडियन तो ये मेरिडियन साथ में जो एंगल बना रहा है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वो है 30 डिग्री इतना समझा ठीक है सो अभी वापस क्वेश्चन का फ्रेमिंग समझो अ मैग्नेट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ऐसे प्लेन में बना रहा है जो प्लेन ऑलरेडी 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है ओके सो विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मेरिडियन हम लोग को बोला है कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू ऑफ डिप मतलब ट्रू वैल्यू हम लोग को एंगल ऑफ डिप का निकाल के दो अभी एंगल ऑफ डिप का ट्रू वैल्यू निकालना है तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे ध्यान दो आप लोग ठीक है ट्रू वैल्यू ऑफ डिप ये होता है एंगल ऑफ डिप ओके अभी इसका एक वैल्यू तो मुझे 45 डिग्री मिला हुआ है सो ट्रू वैल्यू को मैं फाइव डैश बोल देता हूँ ओके तो एक क्योंकि फाइव हम लोग ने ऑलरेडी ले लिया है तो दूसरे को मैं फाइव डैश बोलूंगा अभी समझो ये वाला अगर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इट विल गेट रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा बी कॉस 30 डिग्री और जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑफ
साइन 30 डिग्री। इतना दिमाग में बैठा सबके? हम लोगों ने पढ़ा है ना कि कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो अभी मैंने बोला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस 30, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन 30। बट वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट द वर्टिकल कंपोनेंट बीवी। हम लोग बोलेंगे, हम लोग तो इधर हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल मेजर करते हैं, सो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द वर्टिकल कंपोनेंट। सो हम लोग बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ये है नया बी एच डैश हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है नया वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज बीवी डैश। सो वर्टिकल कंपोनेंट में कुछ चेंज नहीं आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट जैसे पहले था वैसा ही रहेगा। हम लोग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चेंज आएगा। क्यों? Because it is making an angle of 30 degree with the horizontal. If it is making an angle of 30 degree with the horizontal, मैं बोलूंगा मेरे पास बेसिक फॉर्मूला है, that is tan phi is equals to bv upon bh, करेक्ट? tan phi is equals to bv upon bh। अभी नया वर्टिकल हो गया है bv डैश, नया हॉरिजॉन्टल हो गया है bh डैश। phi का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है इधर, that is 45 डिग्री। So I am going to say tan of 45 degree BV dash is B, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन BH जो है वो हो जाएगा BH cos of 30 डिग्री। ठीक है, इतना समझा? ओके। सो अभी मैं ये cos 30 को ऊपर लेके जाता हूं। अगर मैं cos 30 को ऊपर लेके गया, मैं बोलूंगा tan 45 इंटू cos of 30 इज इक्वल्स टू बीवी अपॉन बी एच। ठीक है, tan फाइ था दैट इज बीवी डैश अपॉन बी एच डैश। तो हम लोग बोलेंगे दैट इज न्यू एंगल ऑफ डिप, दैट विल बी tan 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। बीवी अपॉन बी एच का वैल्यू क्या होता है? tan फाइ। हाँ कि नहीं? बीवी अपॉन बी एच की जगह हम tan फाइ लिखेंगे, तो नया वाला एंगल लिख देंगे tan फाइ का डैश। तो हम लोग को मिलेगा tan ऑफ 45 डिग्री इज 1, cos ऑफ 30 डिग्री इज √3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू tan ऑफ 5 डैश। √3 अपॉन 2 का वैल्यू क्या होता है? रिमेंबर √3 अपॉन 2 का वैल्यू होता है 0.866। ठीक है, तो ये वैल्यू हमेशा आपको याद रखना है, √3/2 का 0.866, मतलब tan 5 डैश इज इक्वल्स टू 0.866। हम लोग को बोला है कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू, तो मुझे फाइ डैश का वैल्यू निकालना है, tan उस तरफ जाएगा, इट विल बी फाइ डैश इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0.866। देखो टेक्स्ट बुक में यही आंसर दिया है, हाँ कि नहीं? एंड दैट Yes. बिकम्स आवर फाइनल आंसर। मतलब उन लोग ने tan इनवर्स निकालने नहीं बोला है, तो हम भी इसको यहां तक छोड़ देंगे। समझा इतना सबको? चलो सॉल्व।
डन एवरीवन? डन? ओके, वेरी गुड। अभी हम लोग न्यूमेरिकल से हटके थोड़ा बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस पे आएंगे। लॉजिकल क्वेश्चंस भी बोल सकता हूँ, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन भी बोल सकता हूँ। ऑन पेज नंबर 228 एवरीवन, पेज नंबर 228। 228 में क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 4। क्वेश्चन में बोला क्या है हम लोग को बोला है अ सर्कुलर मैग्नेट is made with its north pole at the center, separated from the surrounding circular south pole by an air gap. Draw the magnetic lines in the gap. ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन भी है, लेकिन पहले हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन सेटिस्फाई कर देते हैं। ओके, पहला वाला पैराग्राफ सेटिस्फाई करते हैं। अ सर्कुलर मैग्नेट इज मेड विथ इट्स नॉर्थ पोल एट द सेंटर। सर्कुलर मैग्नेट है, सर्कुलर मैग्नेट का नॉर्थ पोल उसके सेंटर में है, मतलब दिस इज अ सर्कुलर मैग्नेट विथ अ नॉर्थ पोल एट द सेंटर। इफ नॉर्थ पोल इज एट अ सेंटर, आगे बोला है सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग सर्कुलर साउथ पोल बाय एन एयर। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से सेपरेटेड है बाय एन एयर। ठीक है, एयर से सेपरेटेड है, तो ये हम लोग का साउथ पोल है, विच इज अगेन अ सर्कुलर मैग्नेट। सो इसको मैं बोलूंगा दैट इज साउथ पोल, और बीच में हमारे पास रहेगा दैट इज एयर गैप। इतना समझा क्या हुआ? यस, ये क्वेश्चन हमने सेटिस्फाई किया। आगे बोला है ड्रॉ दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द गैप। भाई गैप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ गैप में। इसका मतलब क्या? हमको मालूम है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द साउथ पोल। सो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द गैप। इतना समझा सबको? यस एवरीवन? तो इसको नाम दे दो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आगे अभी सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का, मतलब उसी के अंडर सब क्वेश्चन है। ड्रॉ अ डायग्राम to illustrate the magnetic lines of force between the south poles of two such magnets। मतलब अगर ऐसा दो मैग्नेट बाजू में रख दिया तो उसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसा रहेगा? तो हम लोग का मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहेगा समथिंग लाइक दिस। सेंटर में नॉर्थ रहेगा, इधर है हमारे पास साउथ, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग को बोला है कि ऐसा और एक रखो, तो ऐसा अगर हम लोग और एक रखेंगे आजू बाजू, तो साउथ पोल की तरफ क्या हम लोग का मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाएगा? सो दिस इज साउथ पोल। अभी मेरे को मालूम है साउथ पोल में क्या होगा, हम लोग का मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की तरफ आएगा। ओके, सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल कम इन द इनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां से आएगा इन द इनवर्ड डायरेक्शन, 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 यहाँ पे भी यहां से आएगा इन द इनवर्ड डायरेक्शन, यहां से भी आएगा इन द इनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे हम लोग का साउथ पोल में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आ जाएगा इन द इनवर्ड डायरेक्शन। मतलब इफ यू आर गोइंग टू सी, दोनों के बीच में रहेगा दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। एम आई क्लियर? यस एवरीवन, समझा ये? गुड, कॉपी। सर वो सेकंड वाला नहीं। सिंपली बोला है कि दो ऐसे मैग्नेट बाजू में रख दो और उसके साउथ पोल में कैसे मैग्नेटिक फील्ड आएंगे वो ड्रॉ करके दिखाओ। तो ऐसे दो मैग्नेट मैंने बाजू में रख दिया। साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड कहां पे आता है, अंदर की तरफ की बाहर की तरफ? यस, अंदर की तरफ की बाहर की तरफ? ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ जाता है ना, तो साउथ में अंदर की तरफ आता है ना, हाँ कि नहीं? हाँ सर। सो इसका लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ आया, अंदर की तरफ। इसका भी लाइंस ऑफ फोर्स आया अंदर की तरफ। सिंपल, समझा? यस, यस सर। गुड। सर
बोलो। थर्ड क्वेश्चन, ओ क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड सब क्वेश्चन। वो तो किया था ना लास्ट लेक्चर में सॉल्व, नहीं थे क्या आप लोग लास्ट लेक्चर में? मैं एब्सेंट हो गया। हाँ तो आप वीडियो एक बार रेफर करो। यस सर। कभी भी आप एब्सेंट होते हो सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वीडियो पुराना रेफर करके नेक्स्ट लेक्चर पे आओ, ओके? नहीं तो ऐसे आधे अधूरे कॉन्सेप्ट्स में आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे। डन डन डन, यस, ओके, चलो आगे बढ़े। ओके चलो, let us move to our next question. Our next question will be हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या बोला है, समझो आप लोग। two bar magnets are placed on a horizontal surface. Draw the magnetic lines around them. Mark the position of any neutral point where there is no resultant magnetic field on your diagram. Oh my god, a new question. That is where we have to mark the neutral point. Now what exactly is the neutral point? न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम लोग का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, ठीक है? इसने बोला ना न्यूट्रल हो गया, ठीक है? इसलिए उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अभी हम लोग को ये वाले क्वेश्चन में बोला है कि दो बार मैग्नेट बनाओ और दोनों के बीच में न्यूट्रल पॉइंट बनाओ। अभी दोनों के बीच में न्यूट्रल पॉइंट में कैसे बनाऊंगा, ध्यान दो। लेट मी से कि इधर मेरे पास एक बार मैग्नेट है विथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, फाइन। अगेन I have a similar bar magnet beside it with north pole here, south pole here, ठीक है? अभी इधर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फिर जाएगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फिर जाएगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फिर जाएगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसे जाते रहेगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और सेंटर पे एक सीधा लाइन रहेगा, हाँ कि नहीं? करेक्ट। इन द सेम मैनर यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड जाएगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यहां पे भी जाएगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बना देना नॉर्थ टू साउथ, ठीक है? ऐसा जाएगा लाइंस, और सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। मैंने क्या बोला, दोनों मैग्नेट सिमिलर है। दोनों मैग्नेट सिमिलर है मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड इधर से ये नॉर्थ पोल से आ रहा है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इधर से ये नॉर्थ पोल से आ रहा है। मतलब इधर से जा रहा है तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव है, इधर से जा रहा है तो नेगेटिव है। दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम है, मतलब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम है। मतलब सेंटर पे आके दोनों आके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हाँ कि नहीं? सेंटर पॉइंट पे आके दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज वन इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, अदर इज मूविंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, सो एट द सेंटर इट विल कैंसिल आउट ईच अदर, सो दिस पॉइंट एट द सेंटर इज कॉल्ड एज
न्यूट्रल पॉइंट। क्यों न्यूट्रल पॉइंट? क्योंकि यहाँ पे दोनों का मैग्नेटिक फील्ड मिलके आंसर कितना दे रहा है? 0। तो न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। समझा इतना? हाँ कि नहीं? यस सुनो। ठीक है, अभी ध्यान दो। सर बोलो। सर क्या? अपने जो सेकंड मैग्नेट है ना, वो हाँ, साउथ नॉर्थ क्यों नहीं रखा? साउथ साउथ रखता तो ये अंदर की तरफ आता, तो ये साथ में ऐड हो जाता ना सेम डायरेक्शन में, पर तो न्यूट्रल उन्होंने कैसे होता? ऐसा मेंशन मेंशन नहीं किया ना, हाँ मतलब। लेकिन हमको तो बोला है न्यूट्रल पॉइंट। अगर मैं इधर नॉर्थ और साउथ रखता तो नॉर्थ का बाहर की तरफ जाता, साउथ का अंदर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाता ना, जीरो थोड़ी ना होता। यस सर। करेक्ट। अभी ध्यान दो, ध्यान दो। इतना जल्दी क्यों है लिखने की? इधर ध्यान दो। ठीक है, अभी ध्यान दो। इधर हम लोग को तो ये बोल दिया, बट इसमें मैं और एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। इसमें हम लोग का और एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें बोलते हैं कि अर्थ पे न्यूट्रल पॉइंट निकालो। अभी अर्थ पे भी हम लोग को न्यूट्रल पॉइंट मिलता है जहां पे हम लोग का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाता है। अभी कैसे हम लोग को न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा अर्थ पे? ध्यान दो, ये हम लोग का प्लैनेट अर्थ। हम लोग बोलते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसा जब बनाया था तो ये ऐसे से ऐसे जा रहा था। हाँ कि नहीं? ये ऐसे जा रहा था ना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अभी बाई चांस अगर मैं अर्थ में कोई भी दूसरा एक मैग्नेट रख दूं जिसका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे ऊपर से नीचे, ओके, तो होगा क्या? हम लोग का अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है नीचे से ऊपर। अगर हमने कोई भी मैग्नेट रख दिया जिसका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऊपर से नीचे, इसकी वजह से क्या होगा? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आएगा नीचे से ऊपर, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जाएगा ऊपर से नीचे, मतलब बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। हाँ कि नहीं? तो मतलब उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। सो अर्थ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम लोग को मिलता है, दैट इज अ न्यूट्रल पॉइंट। समझा क्या? हाँ कि नहीं? आगे नहीं, आगे नहीं। मतलब अर्थ वाला एक बार। एक काम करो, ये बना दो, ये मैं फिर बड़ा बनाता हूँ तो ज्यादा समझेगा। ठीक है, ये बना लो पहले। हो गया ये, हो गया ये, हो गया ये। यस 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 यस। चलो, अर्थ का भी मैं बना के बताता हूँ। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। धरती माँ। ठीक है, अभी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। इतना तो सबको याद रहेगा ना? बॉटम टू टॉप जा रहा था हम लोग का अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। नीचे से जा रहा है ऊपर, नीचे से जा रहा है ऊपर, नीचे से जा रहा है ऊपर, ऐसे हम लोग का अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। अगर बाय चांस मैंने बीच में एक मैग्नेट रख दिया जिस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है ऊपर और साउथ पोल है नीचे, इतना समझा? अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है ऊपर, साउथ पोल है नीचे, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जाएगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएगा नॉर्थ से लेके साउथ तक, अर्थ का मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है नीचे से ऊपर, मैग्नेट का जा रहा है ऊपर से नीचे, मतलब ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आके एक दूसरे को कैंसिल करेगा। कहां पे कैंसिल करेगा? एग्जैक्टली सेंटर में कैंसिल करेगा।
तो यहाँ पे हमको मिलता है अर्थ का न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ पे हमको मिलता है अर्थ का न्यूट्रल पॉइंट। समझा इतना? हाँ कि नहीं? चलो, चाहिए तो नोट करके डाल दो और ये बना लो छोटा सा डायग्राम। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, बट बाय चांस कभी पूछ लिया तो। और कोई और क्या सर वो पूछेगा? मैं ही आपने पूछ उस लूंगा। पॉइंट अर्थ के बाहर बना दिया है। अरे बेटा तू अंदर बना ले, दैट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन। शाबाश, 2 रुपए जीतते हैं आप। धन्यवाद सर। हाँ, तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सजनों। टेक्स्ट बुक के पीछे इनने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन डाल दिए, है ना? अब तो रुक जाओ तुम लोग, बस टेस्ट के लिए रुक जाओ। डन 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 डन। यस, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 3। सब क्वेश्चन 3। What could be the equation for Gauss law of magnetism if a monopole of strength P is enclosed by a surface? अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन ना आप लोग को देना नहीं चाहिए था 11th में, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने गॉस लॉ को ज्यादा इलेबरेट किया ही नहीं है। आप लोग गॉस लॉ को और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो अपने 12th स्टैंडर्ड में, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, प्लस जब आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जाओगे, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली उससे रिलेटेड है, बट इन लोगों ने आपके 11th स्टैंडर्ड में ही डाल दिया है। ये डाल दिया तो आंसर तो निकालना पड़ेगा। बोल रहा है व्हाट वुड बी द इक्वेशन फॉर गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इफ द मोनोपोल ऑफ स्ट्रेंथ P इज एंक्लोज्ड बाय द सरफेस। अभी गॉस लॉ ने हमको क्या बोला था कि हम लोग का नॉर्थ पोल, चलो इधर लेते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और हम लोग ने बोला था द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर अ क्लोज सरफेस दैट इज B बार डॉट DS बार इज इक्वल टू 0। याद है? ये हमारा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म था, ठीक है, कि टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन हमारा 0 रहेगा। लेकिन अभी इनने क्या बोला, 2 पोल नहीं है, सिर्फ मोनोपोल है। ठीक है, मोनोपोल मतलब एक ही पोल है जिसका स्ट्रेंथ है P। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ है जिसका P। तो इसमें गॉस लॉ कैसे मॉडिफाई हो जाएगा? इसमें गॉस लॉ का मॉडिफिकेशन रहेगा, दैट इज टोटल फ्लक्स d phi इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ B बार डॉट DS बार। इट वोंट बी इक्वल टू 0, बट इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू द स्ट्रेंथ दैट इज P। ठीक है, मतलब अगर मैंने दोनों पोल कंसीडर किया और टोटल मैग्नेटिक फील्ड में टोटल फ्लक्स निकालने सोचा गॉस थ्योरम में या गॉस लॉ में, तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू 0 है 2 पोल के लिए। लेकिन इनने क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2 की जगह एक ही पोल हुआ जिसका स्ट्रेंथ है P, तो क्या रहेगा? तो हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू द पोल स्ट्रेंथ। इतना समझा? अभी मेन मैंने क्यों बोला कि ये 12th में होना चाहिए था, क्योंकि ये जो म्यू नॉट इनटू पोल स्ट्रेंथ है, ये एक्चुअली आता है अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स लॉ, जो आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ B ds cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I।
ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि आपका 12th में आना चाहिए। लेकिन अभी इतना समझ लो, सिंगल पोल होगा तो म्यू नॉट इंटू पी लिख देने का एट द प्लेस ऑफ 0। क्लियर एवरीवन? यस, चलो लिख लो। मोनोपोल। बट सर मैग्नेट मोनोपोल में एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, मैग्नेट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नेट हमेशा डायपोल रहेगा, इट कांट बी मोनोपोल। ओके, कहाँ गया? भाग गया क्या? नहीं सर। अच्छा, डन 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 डन। डन। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2 तो बहुत ही सिंपल है, वो आप लोग कर सकते हो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी? कर सकते हो ना? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट करना, होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? अभी उसका क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन 1। सब क्वेश्चन 1 है आप लोग का कि what happens if bar magnet is cut into two pieces transverse to its length or along its length? ओके, आई समझो क्या होगा अगर मैं बार मैग्नेट को कट कर दूंगा 2 टुकड़ों में। तो ये है हमारा बार मैग्नेट विथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो बोला है पहले कैसे कट करना है बार मैग्नेट को? पहले इसको कट करना है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब रहता है परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स मतलब 90 डिग्री पे इसको कट करना है। इसका मैग्नेटिक लेंथ था 12, ठीक है? अगर मैंने इसको ऐसा कट कर दिया नॉर्थ साउथ, ऐसे इसको काट दिया मैग्नेट को, तो क्या रिड्यूस हो जाएगा? पोल स्ट्रेंथ में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? पोल स्ट्रेंथ में फर्क पड़ेगा क्या? नो। यस और नो? नो। नो, ओके, नो। अभी लेंथ में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? लेंथ में कुछ हाफ फर्क होता है। हाँ फर्क पड़ेगा। पड़ेगा ना? लेंथ विल बिकम हाफ, बिकॉज लेंथ अगर इसको काट दिया तो लेंथ विल बिकम हाफ, सो देयर विल बी नो change in the pole strength, but length will become half. हाफ कब होगा? जब एग्जैक्टली सेंटर से कट किया तभी हाफ होगा ना। लेकिन अगर कहीं पे भी कट किया तो हाफ नहीं होगा। इतना तो दिमाग में बैठा ना? हम लोग क्वेश्चन में बोला है क्या सेंटर से कट करने? कट इन टू से नहीं बोला नहीं है ना, सेंटर में ऐसा कुछ बोला नहीं है ना? तो हम बोलेंगे देयर विल बी नो चेंज इन द पोल स्ट्रेंथ बट द लेंथ, और आई कैन से द मैग्नेटिक लेंथ विल रिड्यूस। ये बेटर रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है कि सेंटर से कट किया है, बोला है कहीं पे भी कट करेंगे तो मैग्नेटिक लेंथ तो कम होना ही होना है। अगर मैग्नेटिक लेंथ कम होगा तो उसके साथ साथ और क्या कम होगा? हम लोग को मालूम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू द मैग्नेटिक लेंथ, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं?
तो अगर मैग्नेटिक लेंथ चेंज हो गया तो पोल स्ट्रेंथ भी चेंज, सॉरी अपना डाइपोल मोमेंट भी चेंज होएगा। ओके, सो हम लोग बोलेंगे दैट इज डाइपोल, नहीं, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑल्सो रिड्यूसेस। समझा इतना सबको? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? समझा ना? हाँ। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन भी है, बोला है ट्रांसवर्स और दूसरा बोला है अलोंग द लेंथ। पहले ये लिख लो, फिर मैं अलोंग द लेंथ करता हूं अच्छे से, स्वच्छ लिखेंगे हम। सर फिर ज्योमेट्रिक लेंथ भी चेंज होगा ना? हाँ, ऑफ कोर्स चेंज होगा वो तो। डन डना डन डन। यस, हो गया, 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 गुड। हाँ हो गया। हाँ गुड। चलो, आई ध्यान दो, पहला बोला था ट्रांसवर्स कट करो, दूसरा बोला अलोंग दी लेंथ। तो दूसरा कंडीशन दिया है अलोंग दी लेंथ। अलोंग दी लेंथ का मतलब क्या रहता है? मतलब इसके लेंथ के अलोंग इसको काट दिया। अगर इसके लेंथ के अलोंग इसको काट दिया तो भी ऐसा नहीं बोला है कि सेंटर से ही काटा है, बोला है कि लेंथ के अलोंग इसको काट दो। ठीक है, अगर लेंथ के अलोंग काट दो, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ऐसा 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 करके काट दो। ठीक है, चाहिए तो बीच में से काटो या लेंथ के अलोंग इसको ऐसा काट दो। अगर लेंथ के अलोंग काट दिया तो क्या रिड्यूस होगा? सबसे पहला चीज, पहले बताओ मैग्नेटिक लेंथ में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नो। नहीं नो। ना, तो मैग्नेटिक लेंथ विल रिमेन द सेम, लेकिन जो इसका स्ट्रेंथ था, पोल स्ट्रेंथ, अगर बीच में से काटा तो एग्जैक्टली आधा हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेट के दो टुकड़े हो जाएंगे बीच में से। और पोल स्ट्रेंथ तो ऐसा इधर रहता है, तो इसे बीच में से काट दिया तो उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस होगा, हाँ कि नहीं? सो हम लोग का मैग्नेटिक लेंथ सेम रहेगा, पोल स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा। अगर पोल स्ट्रेंथ रिड्यूस होगा तो डायपोल मोमेंट भी रिड्यूस होगा, हाँ कि नहीं? हाँ। है ना, क्योंकि डायपोल मोमेंट m इज पोल स्ट्रेंथ इनटू द मैग्नेटिक लेंथ। सो पोल स्ट्रेंथ हम लोग का रिड्यूस हो गया तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी रिड्यूस होगा। गुड, लिखो। ये कौन है? हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो हो गया, हो गया, हो गया। हो गया।
हो गया? हो गया? हो गया. Okay, ध्यान दो. Okay, so here we have completed the entire chapter, that is magnetism. समझा गया chapter? Yes, everyone. Okay. जो स्टूडेंट्स ने वीडियोस मिस किया है या लेक्चर्स कोई भी मिस किया है, काइंडली गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस. जाके एक बार वीडियोस देखो, तभी जाके दिमाग में बैठेगा. और जिसने मिस नहीं भी किया है वो भी जाके वीडियोस देखो, तो एक बार पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. और उसके बाद वी हैव सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस, ऑल दी प्रॉब्लम्स फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक. पीछे एक्सरसाइज का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया है और सारे के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए. हार्डली एक या दो क्वेश्चन मैंने छोड़े होंगे. आई थिंक मैंने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया, तो एमसीक्यू आपका होमवर्क रहेगा. ठीक है, सोचोगे, टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, फिर चाहिए तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस द आंसर विथ यू, ए बी सी या डी जो भी है, तो आप लोग को भी आइडिया आएगा कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट. क्लियर एवरीवन? ठीक है, फाइन. सो रीड द एंटायर टेक्स्ट बुक और कंपेयर करना. अभी तक आपने कंपेयर तो कर ही लिया रहेगा कि हमने कितना नोट्स बनाया है और टेक्स्ट बुक में क्या मैनर में दिया हुआ है. तो हम लोग का तो जो नोट्स बना है वो तो बहुत ही वास्ट आप लोग को दिखा रहेगा, इन डिटेल आपको दिखा होगा. सो हम लोग का अप्रोच हमेशा ऐसे ही रहेगा, पहले अपने नोट से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, ताकि हम लोग को टेक्स्ट बुक में जो भी लिखा है वो समझने में इजी हो. वंस यू हैव रेड द टेक्स्ट बुक, उसके बाद अगर मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कर भी दिए हैं क्लास में, इवन देन ट्राई, मतलब विदाउट लुकिंग ट्राई टू सॉल्व दैट. एंड इफ यू गेट स्टक एट एनी पॉइंट, एनी पार्ट, देन रेफर टू आवर नोट्स. हमने तो सॉल्व किया ही है क्लास में, देखो हमने कैसे कैसे सॉल्व किए, फिर बाद में खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करो. सो दिस शुड बी द अप्रोच while solving the entire chapter, तभी जाके चैप्टर स्ट्रॉन्ग होता है. प्लस आपको असाइनमेंट शीट्स भी मिल चुके हैं, करेक्ट? असाइनमेंट शीट्स भी करो, टेक्स्ट बुक करो, पीछे के क्वेश्चन करो, बस देन यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम. एम आई क्लियर एवरीवन? यस, चलो. एनी डाउट एनीवन, और शुड आई गो एंड स्लीप? ठीक है, चलो. बॉय बॉय, थैंक यू. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you, Good sir. night, Bye. sir. No lunch. नो लंच. Hi, sir. बॉय.